Very good morning to everyone. This is the sum we will be doing in this lecture in front of your screen from the following trial balance of Taxman Enterprises. Prepare manufacturing, trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2013 and balance sheet as on that date. So we have to prepare manufacturing account, trading and profit and loss account, balance sheet on as on date 31st December 2013, and the name of the company is Taxman Enterprises. Opening stock of raw material and finished goods is given. WIP is not there in this question. So raw material का जो opening stock है वो manufacturing में आएगा, finished goods का जो opening stock है वो trading account में आएगा. Then we have purchase of raw material, we have carriage nothing is told, we can assume it at carriage inward. फिर wages है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, सैलरीज है P&L अकाउंट में, पावर लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इंश्योरेंस मशीनरी है, मशीनरी इज यूज्ड, machinery is used in the factory, machinery is used in the factories. Machinery का insurance will come in the factory, that is our manufacturing account. Repairs to machinery also will come in the manufacturing account. Sales will come in the trading account. Return outward मतलब purchase return, return inward मतलब sales return. Never get confused. Purchase आउटवर्ड मतलब ये जो रिटर्न आउटवर्ड मतलब ये रिटर्न बिजनेस के बाहर जा रहे, दैट विल बी परचेस रिटर्न. रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न. स्क्रैप सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. इंटरेस्ट इज इन द क्रेडिट साइड मीन्स इंटरेस्ट रिसीव्ड है. फिर कन्वेयंस P&L अकाउंट, प्रोफेशनल फीस P&L अकाउंट, स्टेशनरी P&L अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी P&L अकाउंट, कैपिटल, what is the capital liability, capital will come in the liability, and we have कैपिटल के बाद ड्रॉइंग कैपिटल में से लेस होगा. फिर व्हाट वी हैव आफ्टर दैट वी हैव बैंक बैलेंस. सी बैंक बैलेंस का इंटरेस्ट P&L अकाउंट में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिसीव्ड है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट साइड मींस इनकम. फिर ये बैंक बैलेंस का देखो साइड कौन सा है, बैंक बैलेंस इज इन द क्रेडिट साइड. बैंक बैलेंस इन द क्रेडिट साइड मतलब ये लाइबिलिटी में आएगा, इट इज नेगेटिव बैंक बैलेंस. whenever bank balance comes in the debit side of trial balance, because bank balance asset है और asset debit side में होता है trial balance का, but ये bank balance creditor के साथ credit side में है मतलब ये liability है, ये overdraft है. ये bank balance क्या है, bank overdraft. This is bank overdraft. It is bank overdraft. And what we have, creditor is liability, 10% investment is asset, debtor asset, furniture asset, machinery asset, cash in hand also is asset. But ये bank balance is not a asset because it's in the credit side of the trial balance. Assets are in the debit side of the trial balance. Trial balance के debit side में asset होते हैं और expense होते हैं, credit side में liability होते हैं और income होते हैं. तो bank balance cannot be what you say, bank balance cannot be a asset here because it's in the credit side, so it's a liability. Then we have closing stock. Closing stock में raw material है, finished goods है. Closing stock will come in the raw material manufacturing account, finished goods trading account. Then again one more entry will come in the asset side.
देन वी हैव कैरेज का बोला गया है, 1/3 इज कैरेज फॉर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स P&L अकाउंट में आता है, कैरेज आउटवर्ड, एंड 2/3 इज फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। मीन्स कैरेज में, कैरेज को हाईलाइट करते हैं, कैरेज दो जगह विल कम, कैरेज विल कम अंडर 2 प्लेसेस। कौन सा 2 प्लेस में आएगा? P&L अकाउंट में भी आएगा 1/3 और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा 2/3। Then what we have? Then we have goods purchased worth rupees 3,000 are included in closing stock, but no entry is passed. मतलब closing stock में there is 3,000 का goods, closing stock में there is 3,000 का goods, जैसे वो क्या हो गया है, it is not entered in the, they say goods purchase worth 3,000 is included in the closing stock, is included in the closing stock, लेकिन it has not been included in the see, it has इसका एंट्री बुक्स में नहीं है, तो गुड्स परचेस होता है तो इट शुड कम इन द परचेसेस। अगर गुड्स परचेस हो रहा है तो इट शुड कम इन द परचेसेस एंड नॉट इन द क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको परचेसेस में लिखेंगे, वी विल पुट इट इन द परचेस। और ये क्यों नहीं रेक्टिफाई हुआ रहेगा, क्रेडिटर्स में भी इसको रिकॉर्ड नहीं किया रहेगा, तो हमें ये दो जगह पे लिखना पड़ेगा। एक तो जैसे गुड्स परचेज क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में बिकॉज वो सेल नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो उसको उसके सही जगह पे एंट्री नहीं दिया है, उसको सही जगह पे, मतलब वेयर इट शुड कम, इट शुड कम इन द परचेस ऑल्सो, तो परचेस में इसको कोई इफेक्ट नहीं दिया। तो दे से गुड्स परचेस वर्थ 3,000 आर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, बट नो एंट्री इज पास इन द बुक्स फॉर द सेम। बुक्स में किधर आना चाहिए, कभी भी गुड्स परचेस करते हैं तो परचेसेस में आता है, और दूसरा किधर आता है, जरूर हमने क्रेडिट में खरीदा होगा, अगर कैश में खरीदते तो पैसा बाहर जाते ही समझ में आता कि रिकॉर्ड करना है। इसको क्यों रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बिकॉज इट इज अनरिकॉर्डेड परचेस। अनरिकॉर्डेड सेल्स होता है तो हम उसको सेल्स में ऐड करते हैं और डेटर्स में ऐड करते हैं। अनरिकॉर्डेड परचेस होता है तो उसको परचेस में ऐड करते हैं और क्रेडिटर्स में ऐड करते हैं। तो परचेस तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का परचेस है। और एक चीज हम लोग इसको मान लेते हैं कि फिनिश गुड्स परचेस किया है, तभी हम लोग लिखना भूल गए, या तो हम उसको रॉ मटेरियल परचेस में भी ऐड कर सकते हैं, दोनों में से किधर भी ऐड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट द राइट आंसर ओनली। देन व्हाट इज देयर इज अ डेप्रीसिएशन इन, डेप्रीसिएशन किधर है, मशीनरी पे डेप्रीसिएशन है, देयर इज अ डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। सो मशीनरी को हाईलाइट करो, उसमें देयर इज अ डेप्रीसिएशन। एंड किस पे, फर्नीचर पे देयर इज अ डेप्रीसिएशन, फर्नीचर को भी मार्क करो। इसके बाद सी आफ्टर डूइंग द डेप्रीसिएशन का पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10%, डेटर को मार्क करो, डेटर में देयर इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सो डेटर वी हैव टू मार्क। उसके बाद डेटर देयर इज इन फायर, finished goods costing rupees 5,000 were destroyed, finished goods costing 5,000 was destroyed, but insurance company admitted the claim of 3,000 only। they say क्या हो गया है, there is a, what you say, there is a fire, there is a fire and goods destroyed was how much, 5,000। आग लग गया एंड कितना कॉस्टिंग का फिनिश गुड्स जल गया, 5,000 का, बट इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया,
3000, मतलब लॉस कितना हुआ, क्लेम इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल इज 3000, सो लॉस कितने का हुआ, 5000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, 5000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, इंश्योरेंस कंपनी गेव एन क्लेम ऑफ 3000, सो लॉस इज ऑफ 2000, तो तीनों इफेक्ट आएगा, लॉस बाई गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 5000, बाई लॉस बाय फायर 2000, क्लेम रिसीवेबल 3000, फिर डेटर इंक्लूड ₹5000 ड्यू फ्रॉम अमित, मतलब हमारे डेटर में डेटर में there is two adjustment, one see now we are discussing, डेटर include 5000 due from Amit, there is one customer called Amit, उससे 5000 मिलना है, उससे कितना ड्यू है, 5000 ड्यू है, बट एन अमाउंट ऑफ 4000 इज ऑल्सो ड्यू टू हिम एंड इट इज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, मतलब अमित जो है वो हमें 5000 पे करना है और हमें उसको पे करना है 4000, मीन्स अमित को हमें देना है, वापस करना है 5000 और हमें अमित को पे करना है 4000, सो ये होता है इंटर कंपनी डेट्स, मतलब अमित से पैसा लेना भी है और अमित को पैसा देना भी है, अमित से लेना है 5000 और उसको देना है 4000, अमित को पे करना है हमें 4000 और अमित को हमें वापस करना है 5000, तो क्रेडिटर और डेटर में जो कॉमन है, मतलब अब हम लोग उससे सिर्फ 1000 वापस लेंगे बिकॉज हमें भी तो उसको 4000 देना है, means we have to pay to Amit 4000 and Amit has to pay us 5000. We have to pay Amit 4000 and Amit has to pay us 5000. तो जब हमें भी उसको 4000 देना है और उससे 5000 लेना है, तो हम लोग वो उससे जो 4000 देने का है हम बोलेंगे वो सेटल कर देते, लेट अस सेटल दैट 4000, यू डोंट गिव अस 4000 एंड वी विल आल्सो नॉट गिव यू 4000, जो एक्स्ट्रा 1000 है तुम हमें से वो वापस करो, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेटर में से भी 4000 वापस नहीं मिलेगा और हम भी क्रेडिटर को 4000 नहीं देंगे, तो हमें डेटर में से भी 4000 माइनस करना है और क्रेडिटर में से भी 4000 माइनस करना है, बिकॉज दैट इज अ कॉमन अमाउंट, दैट इज द कॉमन अमाउंट, देयरफॉर डेटर में से भी 4000 माइनस करना है और क्रेडिटर में से भी 4000 माइनस करना है, मीन्स क्रेडिटर में भी दो एंट्री, दो एडजस्टमेंट है, डेटर में भी दो एडजस्टमेंट है, एक आरटीडी का एडजस्टमेंट, एक अमित का एडजस्टमेंट, एंड क्रेडिटर में अनरिकॉर्डेड परचेस है और ये अमित का माइनस करने का है, मीन्स देयर इज टू एडजस्टमेंट. नाउ दिस वाज द लास्ट, नाउ लेट अस स्टार्ट द पोस्टिंग, लेट अस स्टार्ट विद द सम. तो सबसे पहले क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक है तो लेट अस राइट टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो उसमें हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक एंड इन द ब्रैकेट रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 18000 है, तो यहाँ पे वी विल राइट इन 1A, where is the amount, 1 minute, there is the amount is 18,000, so we will write here 18,000, so यहाँ पे we will write 18,000. इसके बाद what is there, रॉ मटेरियल के बाद वी हैव फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, सो वी विल राइट टू ओपनिंग स्टॉक इन द ब्रैकेट वी विल राइट फिनिश गुड्स, अमाउंट इज हाउ मच, 2500 या 300 है, 2500 है, यस 2500. देन वी हैव परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो purchase of raw material will add here, add purchase of raw material, amount क्या है 95,800, the amount is 95,800, we will write 95,800.
इसके बाद व्हाट इज देयर, इसके बाद कैरेज, कैरेज में देयर इज एडजस्टमेंट, 1/3 सेल 2/3 परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो दोनों जगह कैरेज आएगा, इधर ऐड करेंगे कैरेज कितना 2/3 मिनट, कैरेज कितना है 2/3, तो 2/3 निकालो 12,000 का 2/3, हाउ मच आर यू गेटिंग, 12,000 का 2/3 कितना कैरेज है, जो 2/3 कैरेज कितना आर यू गेटिंग 8,000, 2/3 इज हाउ मच 8,000, आर यू गेटिंग 8,000। एंड एक और जगह कैरेज आएगा, P&L अकाउंट में भी आएगा कैरेज टू कैरेज, लेकिन जैसे सेल ऑफ गुड्स 1/3 है, दैट विल बी हाउ मच 4,000। दिस इज द इंफॉर्मेशन नॉट एडजस्टमेंट। 1/3 कैरेज इज सेल ऑफ गुड्स एंड 2/3 इज परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। कैरेज के बाद भी है वेजेस 18,000, तो वेजेस भी, तो वेजेस विल कम इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बिकॉज वेजेस इज फैक्ट्री रिलेटेड टू वेजेस। कितना अमाउंट है 18,000। Then after wages we have salaries 14,000। सो यहाँ पे लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, salaries we will write 14,000। and after this salaries we have power and lighting, power and lighting will come in the मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अमाउंट क्या है पावर एंड लाइटिंग का 4,500। so we will write to power lighting 4,500। after power lighting we have insurance factory 700, repairs to factory 1,300। factory का everything will come in the manufacturing, तो to insurance bracket में they have told machinery 700 and to repairs of machinery, repairs of machinery कितना है, repairs of machinery is 1,300। so we'll write here 1,300। then what we have sales 203,500। तो इधर लिखेंगे बाय सेल्स 203,500 बिकॉज रिटर्न्स है, रिटर्न से इसलिए इनर कॉलम में लिखा। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, तो रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे लिखेंगे लेस रिटर्न आउटवर्ड 2,500, रिटर्न आउटवर्ड इज 2,500। and then we have रिटर्न इनवर्ड 3,500। तो सेल्स में से लेस करेंगे, लेस रिटर्न इनवर्ड 3,500। तो 3,500 लेस कर दिया तो कितना बचा 2 lakhs। then we have scrap sold, it is a income in the manufacturing account by scrap sold 8,500 scrap sold। फिर इंटरेस्ट इज ऑल्सो इन द क्रेडिट साइड 1,000, तो P&L अकाउंट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है 1,000 लास्ट कॉलम। देन वी हैव कन्वीनियंस 9,500, प्रोफेशनल फीस 6,000। सो ये सब तो P&L अकाउंट का है, तो इधर लिखेंगे
to conveyance professional stationery. All the three we have written. Amount क्या है all the three का? 9,500, 6,3750. तो अमाउंट है 9,500, 6,000 and 3,750. Is the amount correct? Yes. With electricity is there. Electricity, we will, because nothing is told, we will put in the profit and loss account. इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट कितना है? 1250. आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी व्हाट वी हैव? कैपिटल 62,500. तो बैलेंस शीट में कैपिटल में जाएंगे. कैपिटल कैपिटल 62,500. फिर व्हाट वी हैव आफ्टर कैपिटल? After capital we have drawing. After capital we have drawing 30,000. So एक लाइन छोड़ के less drawing 30,000. And what we have? बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ये बैंक बैलेंस क्या है? इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट. सो बैंक बैलेंस भी लिखेगा तो चलेगा, या बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे तो और क्लियर रहेगा. 27,000 बिकॉज नेगेटिव बैंक बैलेंस. क्रेडिट साइड में कभी बैंक बैलेंस होता है? नहीं, डेबिट में होता है बिकॉज इट्स असेट. क्रेडिटर्स वी हैव 61,000, but इसमें there is a adjustment. So creditors, two adjustments are there. 61,000, and then what we have? We have 10% investment. ये hidden adjustment है. 10% investment. So 10% इन्वेस्टमेंट. कभी खरीदा है 10% इन्वेस्टमेंट को? 10% इन्वेस्टमेंट को 1/1/2013, मतलब फुल ईयर. ये कितने का है? 15,000 ना. तो आई विल पुट इट इन द इनर कॉलम. 15,000 10%. तो इंटरेस्ट कितना होता है? 15,000 का 10% फॉर जैन से दिसंबर 1 ईयर कितना होता है? 1 ईयर 1,500 होता है. बट हमें इंटरेस्ट कितना मिला है? हाउ मच इंटरेस्ट वी हैव गॉट? वी हैव गॉट ओनली 1,000 का इंटरेस्ट. से इनर कॉलम में डालना पड़ेगा. इसमें हिडन एडजस्टमेंट था. सो इसमें हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. कितना है? 1,500 मिलना था, बट सिर्फ 500 मिला है. सॉरी 1,000 ही मिला है. 500 अभी मिलना बाकी है. इट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. तो यहाँ पे वी विल राइट व्हाट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. 500. तो यहाँ पे लिखेंगे 15,500. 1,000 we have already received, but what we have not received? We have not received 500 which is outstanding interest. तो ये इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ चाहिए तो इधर लिख लेते हैं. add outstanding
interest. This becomes 15,500. और इसके बाद हिडन एडजस्टमेंट के बाद डेटर 54,000, उसमें भी दो एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स 54,000 एंड उसके बाद फर्नीचर मशीनरी दो है, दोनों को विल राइट वन, दो इधर 3 लाइन छोड़ा। फर्नीचर का अमाउंट है 30,000, सो आई विल राइट फर्नीचर 30,000। एक लाइन छोड़ के मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है 45,000। फिर एक लाइन छोड़ के लास्ट वन इज कैश इन हैंड, and that amount is 200. Let us go and check whether our amounts are correct. 30,000, 45,000, cash in hand 200. इसके बाद we will go to closing stock adjustment 28,000. So less करना है closing stock ब्रैकेट में raw material 28,000. इसके बाद फिनिश गुड्स का कितना है 2,300. तो आई विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में फिनिश्ड गुड्स 2,300. Now we will go to the second effect, closing stock asset side में raw material finished goods 28,000, 2,300, 28,000 and 2,300. How much will this come to? 28 और 2,300 is 30,300. दोनों को ऐड करो 30,300. Now after this सेकेंड इफेक्ट क्या है? सेकेंड एडजस्टमेंट तो कर लिया. अभी गुड्स परचेज वर्थ ₹3,000 आर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक में तो इंक्लूडेड है, लेकिन वी हैव नॉट इंक्लूडेड इट इन द बुक्स, बट नो एंट्री इज पास इन द बुक्स. तो बुक्स में एंट्री पास करना है. चलो क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग इसको रॉ मटेरियल परचेस नहीं फिनिश गुड्स परचेस मानते. अनरिकॉर्डेड परचेसेस. कितने का परचेस अनरिकॉर्डेड है? 3,000. तो एक और जगह को उसको ऐड करना पड़ेगा. ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस. Unrecorded purchases 3,000. This becomes 64,000. Unrecorded purchase 3,000. दोनों जगह रिकॉर्ड कर लिया, परचेस में भी और क्रेडिटर्स में भी. So this entry is done. Now depreciate plant and machinery. Depreciate plant and machinery and furniture by 10%. सो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे 10% का डेप्रीसिएशन निकालो. लेस डेप्रीसिएशन एंड लेस डेप्रीसिएशन. सो 30,000 पे 10% इज 3,000 एंड हियर 10% इज 4,500. तो दिस बिकम्स हाउ मच? 40,500. 40,500 होता है और ये कितना हो जाता है? 27,000 माइनस करने पे. अब प्लांट एंड मशीनरी तो इज यूज इन द फैक्ट्री, सो यहाँ दिखाना पड़ेगा टू डेप्रीसिएशन
to depreciation on land and मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है? 4,500. 4,500. और इसके बाद मशीनरी के बाद फर्नीचर का डेप्रिसिएशन. फर्नीचर इज यूज इन द फैक्ट्री, सो टू फर्नीचर 3,000. दोनों एंट्री दे दिया, दोनों इफेक्ट दे दिया. नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10%. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% का करने, वो बाद में करते एंडिंग में, बिकॉज पहले डेटर क्रेडिटर को माइनस ये वाला एंट्री पहले करना पड़ेगा ना. देन वी कैन टेक अवर आरडीडी. आरडीडी हमेशा फाइनल डेटर्स पे निकालते हैं, तो वो बाद, ये 10% बाद में करेंगे. नेक्स्ट वाला एंट्री देखते. फिनिश गुड्स में 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 3,000 का क्लेम दिया. तो बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ? फायर 5,000. इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला? ओनली 3,000. सो इंश्योरेंस क्लेम, ये क्यों अभी तक रिसीव नहीं हुआ? रिसीवेबल, तभी तो एडजस्टमेंट में दिया है. इट इज 3,000. एंड लॉस बाय फायर इज हाउ मच? 2. लॉस बाय फायर, you all have told the entry 2,000. 5,000 में 3,000 क्लेम मिला तो 2,000 लॉस हुआ. इसके बाद नाउ डेटर इंक्लूड 5,000 ड्यू टू अमित एंड अमाउंट ऑफ 4,000 इज ऑल्सो ड्यू टू हिम. इट इज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर. मतलब डेटर में कितना पैसा नहीं मिलेगा? सेट ऑफ बोल सकते हैं इसको. सेट ऑफ मतलब हम लोग कैंसिल कर रहे हैं. कितना? 4,000. और यहाँ पे क्रेडिटर में भी हम लोग नहीं पे करेंगे, बिकॉज अमित को हमें देना भी है, लेना भी है. सेट ऑफ कितना नहीं देंगे उसको? 4,000 नहीं देंगे. तो 4,000 लेस करने के बाद आउटर कॉलम में इट विल कम 60,000. एंड यहाँ पे इनर कॉलम में 54 से 4 गया तो 50,000. अभी क्या करेंगे? लेस आरडीडी 10%. आरडीडी 10% कितना हो जाएगा? 5,000. सो आउटर कॉलम में इट विल कम 45,000. सो आरडीडी तो आ गया, तो उसका इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में देंगे. 2 बैड डेट्स. ये बैड डेट्स किधर रहता है? ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में रहता है. चेक करो, इज देयर एनी बैड डेट्स इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस? बैड डेट्स, बैड डेट्स, there is no bad debts, only is there any RTD? Is there any reserve for doubtful debts? ये क्वेश्चन में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी नहीं है, तो ये सिर्फ डायरेक्टली हम आरडीडी लिख सकते हैं ना, बिकॉज यहाँ ये क्वेश्चन में ना डाउटफुल डेट्स है, ना देयर इज एनी ओल्ड रिजर्व, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आरडीडी है. तो मैं सब नील नील लिखने से अच्छा आई विल डायरेक्टली राइट टू आरडीडी, बिकॉज ये क्वेश्चन में सिर्फ ये आरडीडी है 5,000. देयर इज नो ओल्ड रिजर्व. ओल्ड आरडीडी प्रोविजन नहीं है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में. ओल्ड बैड डेट्स नहीं है, सिर्फ ये 5,000 का आरडीडी है जो हमने लिख लिया. सारे एडजस्टमेंट्स डन, all adjustments done. Now what we will do, we will close the manufacturing account. कितना आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग? पहले ये क्लोज करो. 18,095,800 प्लस 8,000 माइनस 2,500 एंड 28,000 कितना आ रहा है?
91,300. Are you getting 91,300? फिर what are you getting from the credit side? Credit side का क्या आ रहा है? How much are you getting total? 1,20,300. Are you getting 1,20,300? इसमें से माइनस करेंगे तो विल गेट बाय स्क्रैप सोल्ड, माइनस करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना अमाउंट है माइनस करो, कितना अमाउंट है 1,11,800, 1,11,800। तो ये किधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज द अमाउंट, अमाउंट क्या है, इट इज 1,11,800। सो क्या आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, इससे प्रॉफिट और लॉस 2,07,300, 2,07,300। देखो हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट यू आर गेटिंग, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट आर यू गेटिंग, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या अमाउंट आ रहा है, आर यू गेटिंग 89,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 89,000। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे बाई